For more than half a century, there was this one-of-a-kind law in India that acted like a personal shield for the people writing the news. It's a fascinating story, really. A law that was born out of a crisis, and it tells you a lot about how a country sees its press. So today, let's unpack its rise, its incredibly long life, and its sudden end. So you gotta ask, right? In a country with countless industries, why did just one profession, journalism, get its very own law for fair pay? What made reporters so different from everybody else? Well, to get to the bottom of this, we have to go way back. Right back to the years just after India's independence, a time of huge change and big ideas. See, India's very first press commission pointed out this massive problem. On one hand, everyone agreed that a free press was absolutely essential for the new democracy to work. But on the other hand, the journalists themselves, they were often getting a raw deal with terrible pay and exploitation. The commission basically said, hey, this isn't just a labor issue. It's a threat to the independence of the press itself. And boy, did things come to a head in 1958. A wage board was set up and it came out with new pay rates. But the newspaper owners, they fought back hard. They took it all the way to the Supreme Court. And they won. The court said the board messed up because it didn't properly consider if the newspapers actually had the capacity to pay. That ruling created this huge legal void, a real crisis, that pretty much forced Parliament to do something and do it fast. And that something came in the form of a very specific, very targeted new law. This was the fix, the Working Journalists Act of 1958. Its whole reason for being was to create a rock-solid system to set wages for journalists, one that could actually survive a court challenge, because it was built to fix the exact problem the Supreme Court pointed out. So how did this thing actually work? It was this really smart 5-step process designed to be bulletproof. First, a special committee was formed with legal experts and, this is key, a chartered accountant. They'd hear from both sides, the journalists and the owners. But here's the game changer. They had the legal power to look at the company's books to figure out their capacity to pay. See? Directly addressing the court's issue. Only then would they set the wages and the government would make it law. And listen, this wasn't just some quick patch-up job. This system became the absolute foundation for how journalists got paid for generations. 8. Let that number sink in. That's how many times this whole process happened over the next 60 years. 8 different wage boards were set up to make sure pay was fair across the industry. This wasn't a one-and-done deal. It was a durable, repeating system of protection. And the effect this had on the ground? It was huge. We're not just talking about a paycheck. It was a complete shield. It guaranteed minimum wages, gave journalists a way to legally chase unpaid money, and even set limits on working hours. It was basically the government saying, loud and clear, that the financial security of journalists is vital for a healthy democracy. But like a lot of long-running stories, this special era of protection eventually came to an end. The date itself is pretty stark. On November 21st, 2025, that 1958 Act and all the laws connected to it were officially wiped from the books. The special shield was just gone. So, what happened? Was this some kind of attack on journalists? Well, not exactly. It was actually part of this gigantic national project to simplify India's super complicated labor laws. The idea was to take 29 old separate laws and merge them into 4 new modern codes. And the Journalists Act just got swept up in this big push for modernization. All right, so that brings us to today. What does the world look like now for journalists under these new catch-all labor codes? The biggest shift is moving from something tailored to something uniform. Think of it like this. The old system was like a custom-made suit, designed just for journalists. The new system is more like a one-size-fits-all t-shirt for every worker in the country. Now, there is one important update. The new codes do officially recognize digital journalists, which is a big step for the modern era. So you can see there's a real trade-off here, right? A give and take. On one side, journalists lost those dedicated wage boards and some special rules on things like working hours, but on the other side, more people, like digital creators, are now officially considered journalists, and everyone gets the same safety standards under a much simpler legal system.
Basically, that custom-built shield was swapped out for standard-issue armor. Now, the argument for this whole change really comes down to one word: modernization. People who support it say it cleans up a messy tangle of old laws, it gives businesses more flexibility, and it creates a standard set of rules that just makes more sense for a modern economy. But of course, there's another side to this story, and it's a powerful one. Critics are really worried that this one-size-fits-all idea just undoes decades of progress. Their fear is that it leaves journalists much more vulnerable to the whims of the market, and that it could chip away at the very economic independence the old law was built to protect. So after this whole 60-year journey, from crisis to protection to a complete overhaul, what's the big takeaway here? At the end of the day, the story really boils down to this fundamental tension. For decades, the thinking in India was that journalists are different, and their unique role requires unique legal protection. Now there's been a pivot to a new idea, that in a modern economy, standardization across the board is more important, and that leaves us with this huge debate. Is a tailored shield better than uniform armor? And that's the big question we're left with, isn't it? The old system might be gone, but the original problem definitely isn't. In an age of digital disruption and shaky finances for the media industry, the question of how a society makes sure its storytellers can be economically independent, well, that's more important now than ever before. एक सोचने वाली बात है कि 67 सालों तक भारत में पत्रकारों के पास एक कानूनी ढाल थी। आज हम यही समझेंगे कि वो ढाल आखिर थी क्या और अब उसके हटने का मतलब क्या है। ये साल था 1958, एक ऐसा साल जब ये माना गया कि पत्रकारों को उनके काम को देखते हुए एक खास सुरक्षा की जरूरत है, और इसी साल सिर्फ उनके लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया। और फिर सीधे आते हैं 2025 में। यहाँ आकर वो पूरा दौर, वो खास सुरक्षा का युग एक तरह से खत्म हो गया। उस कानून को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, 67 साल पुराना ये सुरक्षा कवच जब हट गया तो अब आगे क्या होगा? ये बहुत बड़ा बदलाव है और हम इसी के असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? कहानी शुरू होती है सही वेतन के लिए हुए एक संघर्ष से। देखिए, आजादी के बाद का दौर था, नए भारत की कहानी लिखी जा रही थी और ये कहानी लिख रहे थे पत्रकार, लेकिन उनकी अपनी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उन्हें उनके काम का सही वेतन नहीं मिल रहा था और पहले प्रेस आयोग ने इस गंभीर समस्या को सबके सामने रखा। और फिर जो हुआ वो एक तरह की कानूनी इमरजेंसी थी। देखिए कितनी तेजी से चीजें बदली। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले वेज बोर्ड के फैसलों को रद्द किया तो एक कानूनी संकट पैदा हो गया और इसी संकट से निपटने के लिए संसद को फौरन एक्शन लेना पड़ा और 1958 का यह अधिनियम लाना पड़ा। तो ये तो साफ हो गया कि कानून की जरूरत क्यों थी, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था। मतलब आखिर इसने पत्रकारों को प्रोटेक्ट किया कैसे? इस कानून का जो दिल था वो थी ये खास वेतन समिति, और इसे बड़ा सोच समझकर बनाया गया था। इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो ये पक्का करते थे कि वेतन तय करते वक्त कंपनियों की पेमेंट कैपेसिटी का भी ध्यान रखा जाए। ठीक वही बात जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। और हाँ, वेतन तय करने का काम ऐसे ही नहीं हो जाता था। इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस था, सबूतों के आधार पर, पारदर्शी तरीके से, और सबसे अहम, इसमें पत्रकार और कंपनी दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता था। तो इस सब का नतीजा क्या था? नतीजा था एक सॉलिड सुरक्षा कवच। ये पक्का करता था कि पत्रकारों को एक मिनिमम वेज मिले, उनके अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और फिर सब कुछ बदल गया। भारत के लेबर लॉज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सीन में एंट्री हुई नए लेबर कोड्स की। हुआ ये कि सरकार ने लेबर लॉज को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 29 पुराने कानूनों को मिलाकर 4 नए बड़े कोड बना दिए गए और इसी प्रोसेस में पत्रकारों का वो खास कानून भी इन बड़े जनरल कानूनों का हिस्सा बन गया। तो बदलाव आप साफ साफ देख सकते हैं। जहां पहले पत्रकारों के लिए अलग स्पेसिफिक कानून थे, अब उनकी जगह एक जनरल लेबर कोड ने ले ली है जो सभी पर लागू होता है। और ये बदलाव 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया। तो क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा? क्या ये एक प्रोग्रेस है या फिर हम एक कदम पीछे चले गए हैं? यही वो सवाल है जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है। ये जो लाइन है ये पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। सवाल यही है कि क्या एक वन साइज फिट्स ऑल कानून जर्नलिज्म जैसे खास पेशे की जरूरतों को पूरा कर सकता है? तो यहाँ 2 अलग अलग विचार हैं। एक तरफ ये तर्क है कि कानून अब मॉडर्न और सिंपल हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता भी है कि इस प्रोसेस में पत्रकारों ने वो खास सुरक्षा खो दी है जो दशकों से उनके पास थी। और यहाँ बदलावों का असली असर दिखता है। वेतन तय करने के लिए अब कोई स्पेशल बोर्ड नहीं है।
ग्रेचुइटी के नियम बदल गए हैं। छटनी यानी रेट्रेंचमेंट के नियम अब जनरल इंडस्ट्री जैसे हो गए हैं। कई सारे खास फायदे अब जनरल रूल्स के तहत आ गए हैं, जो शायद पहले से कुछ कमजोर हों। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? पत्रकारिता के भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं? बॉटम लाइन ये है कि पत्रकारों का जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन था वो अब नहीं रहा। वो अब उसी कानूनी दायरे में है जिसमें बाकी सब कर्मचारी आते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक वैचारिक बदलाव भी है। और इसके साथ हम इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज जब मीडिया इतनी तेजी से बदल रहा है तो पत्रकारों को आखिर क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल लेबर कोड जो सबके लिए हो, या फिर एक स्पेशल शील्ड जो उनकी आज़ादी और कल्याण को सुनिश्चित करे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों का भविष्य तय करेगा। आज के इस नए और विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हमारे पास टेबल पर बहुत सारे दस्तावेजों का एक पूरा अंबार लगा हुआ है। मतलब पुराने कानूनी दस्तावेज, ऐतिहासिक अदालती फैसले और बिल्कुल ताज़ा लेबर रिफॉर्म्स या कहें श्रम सुधार की फाइलें। जी नमस्ते। मैं इस गहन चर्चा में लेबर लॉज की विशेषज्ञ के तौर पर आपके साथ हूं और जैसा आपने कहा, आज का विषय वाकई बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। आज हमारा फोकस है वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1958 पर और हाल ही में यानी 21 नवंबर 2025 को जो इसे निरस्त किया गया है, हम उस पर बात करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि आजादी के बाद भारतीय पत्रकारों के वेतन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कैसी व्यवस्था बनाई गई थी और दशकों तक इस कानून ने कैसे काम किया। और ये भी कि अब इस नए दौर में जब नई लेबर संहिताएं आ गई हैं तो पत्रकारिता जगत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का होना बेहद जरूरी है और आजादी मतलब निडर पत्रकारिता काफी हद तक उचित वेतन और आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर करती है। सही कहा। कोई भी पत्रकार अगर अपने घर के खर्चे को लेकर परेशान है तो वो निडर होकर काम नहीं कर सकता। तो ये चर्चा सिर्फ एक कानून की नहीं है बल्कि हमारे सूचना तंत्र के पूरे आधार की है। हाँ, ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत 1950s के दशक से होती है, जब देश नया नया आजाद हुआ था। बिल्कुल। उस समय प्रथम प्रेस आयोग यानी फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन हुआ था, जो 1952 से 1954 तक चला था। जब इस आयोग ने मीडिया उद्योग की जांच की तो उन्होंने पाया कि पत्रकारों का वेतन उनकी सामाजिक भूमिका और उस समय की महंगाई के हिसाब से बहुत कम था। बहुत ही नाम मात्र का था। सीधे शब्दों में कहें तो एक बड़े स्तर पर उनका शोषण हो रहा था। हाँ, तो इस संकट का क्या समाधान निकाला गया उस वक्त? इस शोषण को रोकने के लिए सरकार ने 1955 में एक शुरुआती कानून पास किया और उसके आधार पर 1956 में पहला वेज बोर्ड या वेतन बोर्ड बनाया गया। अच्छा, तो ये बोर्ड पत्रकारों के लिए एक सम्मानजनक वेतन तय करने के लिए बना था? जी बिल्कुल। और 1957 आते आते इस बोर्ड ने अपनी दरें तय कर दी। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अखबारों के मालिकों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और फिर ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाँ, और 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी मीडिया जगत को हिला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत का तर्क बहुत तकनीकी था। उन्होंने 1957 के उस पहले वेज बोर्ड के फैसलों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेज बोर्ड ने वेतन तो तय कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि समाचार पत्र उद्योग के पास इतना पैसा देने की क्षमता है भी या नहीं। ओह, मतलब कैपेसिटी टू पे। बिल्कुल। अदालत का मानना था कि आप उद्योग पर ऐसा वित्तीय बोझ नहीं डाल सकते जो उसे दिवालिया कर दे। जाहिर है, अगर अखबारी बंद हो गए तो पत्रकार वैसे भी बेरोजगार हो जाएंगे। सही कहा। तो इस एक फैसले ने एक कानूनी शून्य पैदा कर दिया। मतलब कोई सुरक्षा नहीं बची पत्रकारों के पास। हाँ, और औद्योगिक अशांति या हड़तालें रोकने के लिए संसद को बहुत तेजी से काम करना पड़ा और इसी वजह से 16 सितंबर 1958 को नया वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लागू किया गया। अगर इस कानून की संरचना को देखें तो ये पत्रकारों के लिए किसी कस्टम बिल्ड शील्ड या विशेष कवच से कम नहीं था। बिल्कुल। इस कानून ने सबसे पहले तो ये स्पष्ट किया कि वर्किंग जर्नलिस्ट आखिर है कौन। हाँ, इसकी परिभाषा में सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं बल्कि एडिटर, सब एडिटर और खबर जमा करने वाले सभी लोग शामिल थे। और बाद में तो पार्ट टाइम पत्रकारों को भी इसमें जोड़ा गया। लेकिन एक समस्या तो अभी भी थी ना, पुराना वेज बोर्ड तो कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हाँ, और नया वेज बोर्ड बनाने का इंतजार करने में बहुत समय लगता। तो धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने तुरंत एक विशेष समिति बना दी। और इस समिति की बनावट बहुत अनोखी थी। बिल्कुल। सरकार ने तय किया कि इस समिति का अध्यक्ष कानून मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी होगा, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का। लेकिन सबसे मास्टर स्ट्रोक वाली बात थी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल करना। हाँ, मैंने जब ये पढ़ा तो मैं हैरान था। एक सीए क्या कर रहा है जर्नलिज्म के बोर्ड में? यही तो सरकार की चाल थी
याद है सुप्रीम कोर्ट ने पुराना बोर्ड क्यों खारिज किया था? कैपेसिटी टू पे के कारण। बिल्कुल, सीए को इसलिए रखा गया ताकि वो अखबारों के वित्तीय खातों की जांच कर सके। कमाल है। इसके बाद कोई मालिक अदालत में ये बहाना नहीं बना सकता था कि उनकी वित्तीय क्षमता नहीं जांची गई। एकदम सही। और इस समिति को धारा 4 और 5 के तहत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जैसी शक्तियां दी गई। मतलब ये गवाहों को बुला सकते थे और आपत्तियां मांग सकते थे। हाँ, 30 दिनों के भीतर। और कंपनियों के अंदरूनी खातों की जांच भी कर सकते थे। और इसके बाद धारा 6 और 7 के तहत सरकार उसे गैजेट में प्रकाशित कर देती थी। और गैजेट में छपने के बाद वो न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता था। पत्थर की लकीर। और धारा 11 भी तो थी। अगर किसी पत्रकार का पुराना कॉन्ट्रैक्ट कमजोर है या कम पैसे वाला है तो ये नया कानून उस कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर देता था, रद्द कर देता था। जी हाँ, ये पूरी तरह से पत्रकार के फायदे के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि नियम तो बन गए, लेकिन अगर मालिक पैसे देने से मना कर दे तब क्या? यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन धारा 9 के तहत बकाये की वसूली का तरीका बहुत सख्त था। हाँ, पत्रकार या उसका परिवार राज्य सरकार के पास जा सकता था। और लेबर कोड से तय होने के बाद वो पैसा भू राजस्व के बकाये यानी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूला जाता था। मतलब अगर एक आसान एनालॉजी से समझें तो जैसे सरकार अपना लगान वसूलने के लिए संपत्ति कुर्क कर सकती है, बिल्कुल वैसी ही सख्ती। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अचूक प्रावधान था। और फिर 1962 में संशोधन भी हुआ, धारा 12A जोड़ी गई। हाँ, कानून को और कड़ा किया गया। नियम तोड़ने पर पहली बार 200 रुपए और दोबारा तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। आज कोई सोच सकता है कि 200 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1960 के दशक में ये बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजर्स व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाते थे। मतलब वो कंपनी के ढांचे के पीछे छुप नहीं सकते थे जब तक वो ये साबित ना कर दें कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी। सही कहा। और इन्हीं कड़े नियमों के कारण दशकों तक 8 वेज बोर्ड बने, जिनमें मजीठिया वेज बोर्ड सबसे चर्चित था 2011 का। बिल्कुल, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों की चुनौती के बावजूद बरकरार रखा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हम इस पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के श्रम कानूनों में अब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 21 नवंबर 2025 को 1958 का ये ऐतिहासिक अधिनियम और 1955 का एक्ट भी आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पत्रकारों के अधिकार अब नई लेबर कोड्स में मिला दिए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020, जिसे OSH एंड WC कोड कहते हैं, और वेतन संहिता 2019। बिल्कुल, कानूनों का ये जो विलय या अमेलगमेशन हुआ है, इसके नए ड्राफ्ट नियम 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हो चुके हैं। और लक्ष्य है कि 1 अप्रैल 2026 से ये पूरी तरह से लागू हो जाएं। हाँ, अब इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। कोई इसे सही मान रहा है तो कोई गलत। हम दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। बिल्कुल। तो आलोचकों का क्या तर्क है? आलोचकों का मानना है कि इससे 70 साल की प्रगति उलट गई है। पत्रकारों के विशिष्ट अधिकार छिन गए हैं। जैसे अब पत्रकारों के लिए कोई अलग वेज बोर्ड नहीं होगा। और आम के घंटों की जो सीमा थी 4 हफ्तों में अधिकतम 144 घंटे काम करने की, वो भी शायद प्रभावित होगी। हाँ, और एक बहुत अनोखा अधिकार था पुराने कानून में, जमीर या कॉन्शियंस के आधार पर इस्तीफे का अधिकार, वो अब नहीं रहा। ये बहुत अहम था। अगर कोई पत्रकार वैचारिक मतभेद के कारण इस्तीफा दे तो उसे भी सुरक्षा मिलती थी। अब तो पत्रकार आम कर्मचारी यानी वर्कमैन की परिभाषा में आ गए हैं। आलोचकों का यही डर है कि इससे उनकी आजादी और प्रबंधन से सौदेबाजी की ताकत कम हो सकती है। दूसरी ओर समर्थकों का क्या कहना है? समर्थकों का कहना है कि ये एक बहुत ही जरूरी आधुनिकीकरण है। नए कोड में वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा का विस्तार किया गया है। हाँ, मैंने देखा कि इसमें अब पहली बार स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के कर्मचारियों को भी कानूनी मान्यता मिली है। बिल्कुल, 1958 में तो डिजिटल मीडिया था ही नहीं, अब लाखों डिजिटल पत्रकारों को भी ये सुरक्षा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे सभी उद्योगों के लिए समान सुरक्षा और ओवरटाइम के स्पष्ट नियम सुनिश्चित होते हैं। तो ये थे दोनों पक्षों के तर्क। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1958 के कानून ने पत्रकारों के शोषण से बचाया और मीडिया की वित्तीय क्षमता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया। और कैसे अब 2025 के बाद हम एक नई और एकीकृत प्रणाली की ओर बढ़ चुके हैं। ये सब जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजाना हम जो खबरें पढ़ते या देखते हैं वो उस व्यक्ति द्वारा हम तक लाई जाती हैं जिसकी आजीविका इन्हीं कानूनों से तय होती है। बिल्कुल सही बात है। और जाते जाते इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। जी बताइए। जब डिजिटल युग में मीडिया का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है और अगर कल को एक पत्रकार को कानूनी तौर पर किसी अन्य सामान्य कॉर्पोरेट कर्मचारी या गिग वर्कर के समान ही देखा जाने लगे, तो क्या इससे पत्रकारिता की वो निडरता और आजादी प्रभावित होगी जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या आम नियम पत्रकारिता के असामान्य दबावों को संभाल पाएंगे? ये वक्त ही बताएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।